यूं तो समझ आ गया मैम, ये होता क्या है। इतना समझ में आ जाए वो बहुत। चलो थोड़ा और देखते हैं उसी को आगे। तो कहाँ तक हमने पढ़ा था? तो दूसरा आ गया शायद, विथी। हेलो मैम, हाँ जी, वो अनु वो हो गया है मीटिंग से, उसको ज्वाइन करवा दो। करा दिया। कल वाला आर्टिकल ही नहीं मिला मुझे। हाँ, चला गया। रिसर्च डेट में भी था तो गवर्नमेंट से। वो मैम क्लिनिकल अप्रोच टू आवरण नाम से था। किस नाम से था? क्लिनिकल अप्रोच टू आवरण। ओके। चलो कोई नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं हम कि कैसे आवरण होता है। ये पढ़ो, आवरण की जो पैथोफिजियोलॉजी है ये क्या है, क्योंकि मतलब कैसे होता है, क्या चीजें वहां पे होती हैं। ये पढ़ो, आवरण पैथोफिजियोलॉजी। अनु बार बार एग्जिट हो रही है। पढ़ो कार्तिक। Chakrapani Dutt explains that in Avran, the vitation of Vat is the result of the obstruction to spontaneous stimulation for movement. Avran can also be considered as Sang as an obstruction. Sansarg, the combination of two doshas,
and Vimargaman, the process of altering the direction of flow. The factor which obstructs the pathway of Vata is called as Avrak, and the dosh, Vata is general or its component, that is entrapped by Avrak is called as Avrit. While naming Avran, the name of the Avrak is used as prefix and the name of Avrit is used as suffix. For example, in Kaf, Avritvat, Kaf is the encourage, encouraging factor and Vat is the entrapped dosha. On analyzing Avran, we can observe that the encroaching factor will be aggravating first. Since Avran is possible by Pit Kapha, the tissue elements Dhatu, An, Mal and subdivision of Vat, the etiological factors will be vitiating these factors initiating the pathogenesis Shadkriyakal. Etiological factor explained for vitation of Vat, Swa, Swanidan, that is food with bitter, that is food with tikt, katu or kashai taste. Anantas quality ruksh etc. will not be causing avran but dhatu share. The different pathological processes for the development of avran are अब नीचे आना एक सेकेंड, यहाँ पे देखो इसने जो बोला है कि आवरण को हम कैसे समझ सकते हैं, जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो जो चक्रपाणी ने एक्सप्लेन की है, तो उन्होंने कहा है कि जो विसिएशन ऑफ वात है इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेशन फॉर मूवमेंट। तो मीन्स कहीं ना कहीं वो मूवमेंट उसका हैम्पर हो रहा है। आवरण कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज, आवरण को हम संग मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन भी समझ सकते हैं, एक संसर्ग भी हो सकता है या विमार्ग गमन भी हो सकता है। तो मीन्स तीनों चीजें इसमें आ सकती हैं, संग, संसर्ग और विमार्ग गमन, मीन्स द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आवरक होता है और एक आवृत्त होता है। तो यहाँ पे आवरक क्या है और आवृत्त क्या है, उसमें आपको और ऑब्वियस है जो आवरक होगा मीन्स जो बाहर है, ठीक है, अगर हम एक सर्कल बना लें तो एक उसमें अंदर है एक उसके बाहर है, तो जो बलवान होगा वही तो रोक सकता है किसी को, अपने अंदर हाइड वही कर सकता है। तो इसलिए यूजुअली जो लक्षण आते हैं कई बारी वो आवरक के ज्यादा आते हैं और आवृत्त के कम आते हैं। अब नेक्स्ट है कि आवरण मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, पढ़ो इसको। Owing to the excessive use of etiological factors, there will be vitation of encroaching factors. The vitiated factors will obstruct the channels leading to impairment of the movement of Vata. Once get obstructed, the Vata may simplify, get lodged there and may get covered by the obstructing factors. The functions of the anchoring factors will be excreted and that of entrapped will be reduced. For example, in hemiplegia, हेमिप्लेजिया, Pakshaghat, hemiplegia, Pakshaghat, especially in the Kaphaj type, even though it is a disease of Vata, we can observe the qualities of cough as coldness, edema, and heaviness, and a reduction in the function of Vata as a loss of function and loss of sensation since it is in the entrapped state. ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने हेमिप्लेजिया से आवरण को समझा, तो यहाँ पे कहने कि आवरण व ऑब्स्ट्रक्शन, अगर हम हेमिप्लेजिया की बात करें या पक्षाघात की बात करें तो उसमें क्या है कि स्पेशली अगर हम कफज टाइप की बात करें तो वहां पे क्या है कि वो है तो डिजीज, अब जैसे हमने पढ़ा कि पक्षाघात जो है वो एक वातिक व्याधि है, तो आपको लक्षणों पे ध्यान देना है। अगर आप लक्षणों पे ध्यान नहीं देंगे तो यही आवरण को पढ़ाने का मतलब है कि आवरण यहाँ पे आचार्य चरक ने क्यों एक्सप्लेन किया है, मैं कल भी यही बता रही थी कि जो आवरण मिलेंगे आपको वो एज इट इज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये प्राण आवृत उदान के नाम से ही कोई व्याधि मिलेगी या समान आवृत उदान के नाम से ही कोई व्याधि मिलेगी। ये जो बात है ये किसी भी डिजीज में कहीं पे भी हैम्पर हो सकती है और उसके लक्षण जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं।
तो अगर हम वहां पे कफ दुष्टि है, पक्षाघात वात व्याधि है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कफज टाइप की बात करें तो वहां पे बोल रहे हैं कि जो कफ के लक्षण हैं जैसे शीतता है या गुरुता है, ये लक्षण हमें वहां मिल रहे हैं। तो शीतता और गुरुता अगर हमें मिल रहा है तो इट मीन्स क्या है कि वहां पे कफ है। तो क्वालिटीज ऑफ कफ एज अ कोल्डनेस, एडीमा एंड हैवीनेस, और साथ में जो है वो रिडक्शन इन द फंक्शन ऑफ वात एज अ लॉस ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, कि वहां पे वो हिस्सा उसका काम नहीं कर पा रहा है या वहां पे उसको सेंसेशन नहीं हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स वहां पे जो वात है वो इंटरप्ट स्टेट में है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरा है आवरण द इंटरेक्शन, पढ़ो इसको। Whenever there is an obstruction in the flow of Vata, it may try to abolish the obstruction. If Vata is not strong enough to nullify the encroaching factor in the course of time, the encroaching factor and entrapped Vata will get interacted. At this point of time, the symptoms will be presented equally by both factors as in Vata. In extremities and joints, Rakta and Vata are obstructing the normal flow of each other. They will interact and Avran will happen. हैपन। तो यहाँ पे आवरण को हम एक इंटरेक्शन के वे में भी समझ सकते हैं कि वेन एवर देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ वात, कि वात के प्रवाह में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो इट में ट्राई टू अबोलिश द ऑब्स्ट्रक्शन, वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की कोशिश करता है। इफ वात इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू नलिफाई द एनक्रोचिंग फैक्टर, मीन्स जो आवरक है अगर वो उसको नहीं तोड़ पा रहा है तो इन द कोर्स ऑफ टाइम द एनक्रोचिंग फैक्टर एंड इंटरप्ट वात विल गेट इंटरेक्टेड। तो वहां पे जो आवरण है और वो दोनों है वो क्या करेंगे, उनका इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द सिम्टम्स विल प्रेजेंटेड इक्वली बाय बोथ फैक्टर्स एज इन वात रक्त, कि जैसा वात रक्त में होता है। तो वात रक्त भी एक आवरण का ही प्रकार है, लेकिन वहां पे आवरण में वहां कैसा आवरण हो रहा है कि जब उसने कहा कि वात का फ्लो रक्त ने रोक दिया तो एक टाइम तक तो उसने कोशिश की बात में, लेकिन वो नहीं उसको तोड़ पा रहा है, तो फिर दोनों के सिमिलर इक्वली सिम्टम्स जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि वात रक्त में होता है। वहां पे आपको रक्त के भी लक्षण दिखते हैं और वात के भी लक्षण दिखते हैं। तो इस तरह पे जो है मीन्स वो एक इंटरेक्ट उन दोनों का होता है और वह वो भी एक आवरण की ही कंडीशन पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है आवरण मीन्स द अबनॉर्मल मूवमेंट, इसको पढ़ो। Because of the obstruction in the pathway of Vata, the direction of flow will get altered and is known as Vimargaman. The abnormally moving Vata will vitate other doshas, channels, etc. In Swas Rog Samprapti, the symptoms produced are of abnormally moving Tiryak Gati Vat due to obstruction of kapha. If Vat is more powerful, it will shatter the obstructing factor and will carry the fragments along its altered pathway. This is happening in Granthi Visarpa. When kapha and Rakt is obstructing Vat, it will break kapha or rakt and will carry the fragment of skin, veins, tendons and muscles making tumors. ट्यूमर्स। अब यहाँ पे देखो कि कैसे मतलब आवरण से ही कैसे एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आवरण मतलब वहाँ पे अबनॉर्मल मूवमेंट भी आवरण ही कहलाता है, बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथवे ऑफ वात। अब कई बार क्या होता है कि या तो मीन्स वात का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और उसकी वजह से क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो विल गेट अल्टर्ड एंड इज नोन एज विमार्गम, कि वात अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, अब वो ऐसी कंडीशन में हो सकती है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, इसको हम बोलते हैं विमार्गमन। द अबनॉर्मली मूविंग वात विल विशिएट अदर दोषास। तो अब ये जो अबनॉर्मली जो मूव कर रही है वात, तो ये दूसरे दोषों को भी अपने साथ प्रकोपित कर लेगी। अदर दोषास या चैनल्स मीन्स स्रोतस को भी वो दूषित करती है। इन श्वास रोग संप्राप्ति द सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ abnormally moving वात ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शंस बाय कफ। तो जो श्वास है उसके जो लक्षण आते हैं तो वहां पे वात की गति जो है वो त्रियक हो जाती है जब उसका कफ से मार्ग का अवरोध होता है। तो ये श्वास की कंडीशन में है। फिर नेक्स्ट बोला है इफ वात इज मोर पावरफुल, अगर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली है तो इट विल शटर द ऑब्स्ट्रक्टिंग फैक्टर
जो ऑब्स्ट्रक्टिंग फैक्टर है वो उसको तोड़ डालती है एंड विल कैरी द फ्रेगमेंट्स अलोंग इट्स अल्टर्ड पाथवे, और उसके वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, जो भी वहां पे दोष था, चाहे वो पित्त था चाहे वो कफ था, उसके फ्रेगमेंट्स को वो अपने अल्टर्ड पाथवे में लेके चली जाती है। ये कंडीशन कहाँ पे होती है? तो ये कंडीशन हैपन, दिस कंडीशन इज हैपनिंग इन ग्रंथि विसर्प। अब आप ग्रंथि विसर्प बुक है, आप ग्रंथि विसर्प निकालो 21st चैप्टर में, कार्तिक निकालो ग्रंथि विसर्प। निकाल रहा हूँ। निकाल लिया मैम। निकाल लिया, एक सेकंड रुको, मुझे भी ढूंढने दो। ग्रंथि विसर्प, कफवात जन्य। इसकी संप्राप्ति पढ़ो एक बार, हिंदी में ही पढ़ो। स्थिर गुरु स्थिर गुरु कठिन मधुर शीतल और स्निग्ध अन्नपान के सेवन करने से तथा कफ कारक आहारों के सेवन से, व्यायाम न करने से अर्थात सुखपूर्वक निरंतर बैठे रहने से, उचित समय में बढ़े हुए दोषों को वमन विरेचन द्वारा न निकालने वाले व्यक्तियों के शरीर में कफ और वायु प्रकोपित हो जाते हैं। तो ग्रंथिक विसर्प में दूषित दोष बड़े कौन से प्रकोपित हो रहे हैं? कफ और वात। कफ और वात। नेक्स्ट पढ़ो। दूषित पड़े हुए अत्यंत बलवान ये कफ और वायु रक्त लसिका त्वचा मांस इन दूषों को दूषित कर विसर्ग रोग उत्पन्न करते हैं। जब कफ अधिक रूप में बढ़ जाता है तो कफ के द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी दशा में वायु का प्रकोप अधिक मात्रा में हो जाता है और वह प्रकोपित वायु कफ को अनेक भागों में विभक्त करती हुई कफाशय अर्थात उरय प्रदेश में कठिनता से पकने वाली और कठिनता से अच्छे होने वाली ग्रंथियों की माला उत्पन्न करती है। अथवा जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा जब अधिक रूप में बढ़ी हो तब उस रक्त को कुपित कफ और वायु दूषित कर शिरा स्नायु मांस और त्वचा में आश्रित ग्रंथियों की माला उत्पन्न करते हैं। इन ग्रंथियों में वेदना अधिक तीव्र रूप में होती है। ये ग्रंथियां कुछ बड़ी कुछ छोटी होती हैं, कुछ लंबी कुछ गोल रक्त वर्ण की होती हैं। इन ग्रंथियों में उपताप से अर्थात इन ग्रंथियों के अधिक बढ़ जाने से ज्वर अतिसार काश हिक्का श्वास शोथ प्रमोह विवरणता भोजन में रुचि अपचन मुख से कफ का निकलना वमन मूर्छा अंग भंग निद्राधिक्य बेचैनी तथा शरीर में शिथिलता आदि उपद्रव उत्पन्न होते हैं। इन उपद्रवों से युक्त ग्रंथि विसर्प से पीड़ित व्यक्ति सभी प्रकार की चिकित्साओं के अयोग्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ग्रंथि विसर्प से पीड़ित रोगी विवर्जनीय होता है अर्थात असाध्य। तो ये सेम कंडीशन है ना उसमें। अब देखो कैसे यस इन्होंने मैम। विसर्प को आवरण से कनेक्ट किया है, तो कंडीशन यहाँ पे भी आवरण वाली ही बन रही है। और कैसे वो व्याधि उत्पन्न हो रही है, इन्होंने कहा कि या तो जब वो कफ को तोड़ के ले जाती है अपने साथ वात, तो वो ग्रंथियां उत्पन्न कर देती है, और ग्रंथि में हमेशा वात और कफ ही रहता है। तो ये जो गांठें बनती है तो वहां पे वो क्या है, वो जो दूषित कफ है या जो ऑलरेडी हमारी बॉडी का जो कफ है उसको वात ने अकुमुलेट कर दिया है। सेम कंडीशन यहाँ पे रक्त के साथ बताई है कि रक्त जो है वो उस कपित कफ और वायु को दूषित कर सिरा स्नायु मांस त्वचा के आश्रित ग्रंथियों की माला को उत्पन्न करता है। तो मे भी उसमें ब्लड भी अकोमुलेट होता है, और उसको वहां लाने वाला कौन है? फाइनली मतलब वात। तो ये जो है वो कैसे आवरण से हमने, मतलब मेरा ये 2 दिन से मैं जो जोर लगा रही हूँ वो इसीलिए लगा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि चरक जो आप पढ़ रहे हो चिकित्सा स्थान, तो वहां पे चरक चिकित्सा स्थान पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक डिजीज उन्होंने बता दी तो वो डिजीज वैसे ही प्रेजेंट आपको मिलेगी। चिकित्सा स्थान हमारा पढ़ने का मतलब ये है कि हमें व्याधि समझ में आए कि वो कैसे उत्पन्न होती है, उसमें संप्राप्ति कैसे बन रही है, और कैसे आवरण प्रकरण जो है वो केवल आवरण में ही नहीं है, आवरण हर जगह प्रेजेंट है। वो आवरण संघ के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो आवरण संसर्ग की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और वो आवरण विमार्ग गमन की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आवरण जो है वो एक व्याधि ना होके एक स्टेट है दोषों की, और उसके बेसिस पे हमें दोषों को समझना है और फिर हमें उसको ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि हम पक्षाघात को केवल वात व्याधि समझ के हम ट्रीट करते रहें और उधर से कफ इम्बैलेंस हो जाए या पित्त इम्बैलेंस हो जाए।
नेक्स्ट पढ़ो। While analyzing the symptomatology of various avrans, we can observe that some symptoms are of the aggravated factor and some are of the entrapped vata. Generally, the symptom of encroached factor will be predominant than entrapped vata. For example, in kapha avrit vata, the symptoms of kapha are coldness, heaviness, considerably relief of pungent food, inclination towards fasting, exercise, unctuous and hot ingredients, and symptom of what is colic pain पेन only. ऑनली। तो यहाँ पे Some यही चीज है, बार बार वही समझा रहे हैं कि कफ आवृत वात की अगर हम बात करेंगे तो जो एनक्रोच्ड फैक्टर है, मीन्स जो बलवान है, जो आवरक है, उसके लक्षण ज्यादा मिलते हैं बजाय इंटरप्ट के जो आवृत हो रखा है। तो अगर हम कफ आवृत वात की बात करें तो उसमें भी आपको कफ के लक्षण ज्यादा मिलेंगे, वात का जो है वो केवल एक ही लक्षण है, वात का कॉलिक पेन। In some cases, there will be a diminution of function of encroached dosha contrary to general principle. For example, in prana obstructed by udan, the symptoms presented includes loss of function of different parts of body, ojas, strength and complexion, and even death of the patients. Here we can observe diminution of the functions of encroached dosh, that is udan. तो यहाँ पे उदान के कर्म में हमें कमी मिल रही है। The pathophysiology happening here is the provocation of the interrupted प्राण due to obstruction by encroached उदान। तो यहाँ पे प्राण इंटरप्ट है और उदान जो है वो आवरक है। तो it can be concluded that the subtypes of Vata, whether it is in encroached or interrupt stage, the more powerful subdivision of Vata will exhibit the aggravation of symptoms. तो वहां पे उन दोनों में से बलवान कौन होगा, कई बार उसके बेसिस पे भी उसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। हेलो हाँ जी, मैं राकेश हाँ बोलो राकेश। बोलो। मैम ये लोकेश संदेश और सुखदेव मैम मेरे साथ ही तीनों एक साथ ही लगा रहे हैं मैम क्लास। मुझे अटेंडेंस मार्क करके भेज देना। मैम हम गाड़ी में एक ही फोन से लगा रहे थे, गाड़ी में मैम और वो फोन स्पीकर पे है ना, तो अटेंडेंस ली जा रही है, स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे मैम। तो तुम्हारी सबकी एब्सेंट है आज की, ठीक है? तुम कल क्लास थोड़ी लगा रहे हो, तुम तो अभी फॉर्मेलिटी नहीं कर घूम रहे रहे हो, मैम, ये तो तुम तो फॉर्मेलिटी कर रहे हो क्लास अटेंड करने की, ऑब्वियस है। एक साथ बैठे ना तो एक ही फोन से लगा देंगे। हाँ तो पता है ना, तुम अकेले अकेले नहीं पढ़ सकते, तुम 4 लोग साथ क्या पढ़ोगे? नहीं मैम वो थोड़ा डिस्कस करके अच्छा पढ़ा जाता है। हाँ पता है मुझे तुम्हारा डिस्कशन। नंबर 17 संदेश सुखदेव वतन और रतन के मैं तो रोल अलग है नंबर मैम। नोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तुम्हें पढ़ने के बजाय अटेंडेंस की ज्यादा पड़ी रहती है ना, तुम्हारे पास पेन होगा इसलिए तुम अटेंडेंस लिख के नहीं भेज सकते। कार्तिक एक बार इनके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो रोल नंबर, ले रहा हूँ मैम। मुझे भेज देना। ले लिया। यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है कि mainly 42 types of avran are explained in Ayurvedic classicals. The complexities of process of avran make the diagnosis of avran very difficult. The factors involved in the pathology can be inferred from the symptoms and the site of manifestation. The learned physician, by keen observation of the symptoms and by utilization of the trial and error method of treatment, can diagnose the variety of avran precisely. जो ट्रीटमेंट प्रिंसिपल है वो इसमें बुक में भी बताया हुआ है कि द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल फॉर आवरण इंक्लूड स्पेसिफिकेशन ऑफ वात along with cleansing of channels,
तो मेनली यहाँ पे आवरण में क्या है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो भी रही है तो कहीं ना कहीं उसको बात ही उधर से उधर लेके जा रही है। तो हमें एक तो बात पे काम करना है, दूसरा हमें स्रोतस के क्लीनिंग पे काम करना है एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनक्रोचिंग दोषास, या फिर जो वहाँ पे मतलब वहाँ पे तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो मेनली इसमें जो ट्रीटमेंट बताया है तो उसमें शिलाजीत और गुग्गुल, इसका जो अनुपान बताया है वो बोला है मिल्क के साथ, along with milk are indicated because they are the best rejuvenating drugs। तो यहाँ पे एक तरह से रसायन चिकित्सा है, शिलाजीत भी रसायन है, गुग्गुल को भी रसायन कहा है। और ये मैंने मतलब प्रैक्टिकली ये चीज मैंने देखी है कि कहीं पे भी आप देख लेना, रेयर ही कोई वैद्य होगा जो आपको बोलेगा कि गुग्गुल को आप दूध के साथ लीजिए। लेकिन एक बात व्याधि ऐसी है जहाँ पे जब आवरण का कंसेप्ट आता है तो वहां पे इंडिकेट किया गया है कि गुग्गुल की जितनी भी हम टैबलेट्स देते हैं, गुग्गुल का अनुपान उन्होंने दूध बताया है। और बहुत कम वैद्य जो है वो टैबलेट्स को, गुग्गुल की टैबलेट्स को दूध के साथ देते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक किसी को कि बोला है कि इसको दूध के साथ ही लेना है। और शिलाजीत का तो यूजुअली अनुपान दूध रहता है, लेकिन गुग्गुल को कोई दूध के साथ नहीं देता। तो अगर आप आवरण के हिसाब से आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आवरण है या स्रोतो अवरोध है और तब आप गूगल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बेटर है उसको दूध के साथ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे रसायन है, दूध भी रसायन का काम करता है। तो जब दो रसायन आपस में मिलेंगे तो उनका जो फंक्शन है वो अलग होगा। चैनल्स एंड टिश्यूज बाय कटिंग, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये साथ में ये छेदन भी करते हैं। द डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ आवरण आर डिटेल्ड इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स, वो हमारी बुक में बताई हुई है। तो अब हम आते हैं बुक के ऊपर। तो ये तो था एक कंसेप्ट कि आप लोगों के दिमाग में कुछ बैठे कि फाइनली आवरण होता क्या है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो अब हम आते हैं बुक पे। बुक खोलो। तो ये मैंने आपको पढ़ने को बोला था, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। जो अन्योन्य आवरण बताए हैं, क्योंकि मैं पढ़ा भी दूंगी तो भी मतलब ये आप खुद के हिसाब से याद कर सकते हो कि जैसे व्यान वायु के कर्म क्या है, प्राण वायु अगर समान वायु को आवृत करती है तो क्या होगा। तो एग्जाम में केवल इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि जो आवरण है उनके नाम लिखिए, या इसकी चिकित्सा जो है वो पूछी जा सकती है। उसके बाद जो इसमें बताए हैं पित्त आवृत प्राण वायु के लक्षण या कफ आवृत प्राण वायु के लक्षण, तो वहाँ पे जो लक्षण है वो किसके ज्यादा है, तो ऑब्वियस है वहाँ पे जो आवरक है उसके ज्यादा मिलेंगे और जो आवृत है वो कम होंगे उसके लक्षण। तो दोषों के हिसाब से भी आवरण के लक्षण जो है वो इसमें बताए गए हैं। और चिकित्सा मैंने आप लोगों को बता ही दी, शिलाजीत है, रसायन है, गुग्गुल का प्रयोग है। उसके अलावा जो है इसमें च्यवनप्राश और अभ्य आम्लकीय रसायन 242 नंबर श्लोक है। च्यवनप्राश और अभ्य आम्लकीय रसायन का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। और वस्ती में यापन वस्ती का प्रयोग इसमें बताया ही है, ये हमने कल भी पढ़ लिया था। कॉम्प्लिकेशंस जो इसके बताई हैं कि आवृत वायु की अगर हम उपेक्षा कर देते हैं तो हृदय रोग, विदृधि, प्लीहा, गुल्म और अतिसार, तो ये आवरण की उपेक्षा करने से भी हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में 2 श्लोक दिए हैं, इसको हम जो आपने पढ़ा होगा, ये जो है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। तो लास्ट में एक श्लोक दिया है, वात पित्त और कफ का ज्ञान जो है वो दुर्विज्ञेय होता है। लोके वायु अर्क सोमा नाम दुर्विज्ञेय यथा गति, कि जिस प्रकार लोक में वायु, सूर्य और चंद्रमा की गति का पता करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है, उसी प्रकार वात पित्त और कफ की गति का ज्ञान करना जो है वो बहुत कठिन है। नेक्स्ट श्लोक जो है वो 247 नंबर श्लोक है, क्षयं वृद्धि समत्वं च तथैव आवरणं भिषक विज्ञाय पवन आदीनां न प्रमुह्यति कर्मसु, कि वात पित्त कफ इन दोषों की क्षय वृद्धि, साथ में इनकी समअवस्था और साथ में इनके आवरण को जो चिकित्सक अगर बेटर जानता है तो वो कभी भी मुंह को प्राप्त नहीं होता। तो ये हमारा आवरण प्रकरण
या मैं कहूँ कि वात व्याधि, वो जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक तरीके से हमारा सिलेबस जो है वो चरक का कंप्लीट हो गया है आज। तो अब आप मुझे ये बताओ रिवीजन कैसे स्टार्ट की जाए। बोलो। चिकित्सा स्थान से मैम। चिकित्सा स्थान से, ठीक है। कल्प स्थान, सिद्धि स्थान आप लोग कर लेना। कल्प स्थान के तो मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको बता ही दिए हैं, और सिद्धि स्थान के भी मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो चिकित्सा स्थान में कहाँ से शुरू की जाए? एक एक चैप्टर लेना है या दो दो चैप्टर लोगे? ये एक मैम, व्याधियों से शुरू कर दो मैम, एक एक चैप्टर। एक एक चैप्टर। एक एक चैप्टर, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें, स्टार्टिंग से या ऐसे ही रैंडमली? स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से कर दो मैम। स्टार्टिंग से मैम। ठीक है। तो रसायन तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही है। चलो ठीक है, जोर से करा रसायन दो मैम, बेशक है। है ना, ज्वर से करा देते हैं। ठीक है। तो एक तो डेली का एक श्लोक, ठीक है। और कल आपने ज्वर पढ़ के आना है। हम ऐसा करते हैं, जो क्योंकि देखो लॉन्ग क्वेश्चन मैं वैसे बता दूंगी, वो आप खुद तैयार कर लेना, क्योंकि वो आपके मतलब राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप किसी आंसर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं ज्वर में से आपसे डेली जो है वो 8-10 क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग उनका आंसर करोगे। तो हम 2-2 मार्क्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना, 2-2 यस मार्क्स। मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो 40 मार्क्स को हम पहले टारगेट करके चलते हैं कि हमारा 40 मार्क्स में से हमें 20-25 मार्क्स तो मतलब एवरेज बच्चा भी ले ले। ठीक है। यूजुअली तो अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो फिर तो 40 से 35 भी कईयों को आ जाते हैं इवन। तो ज्वर, कल संडे भी है, आपके पास अच्छा टाइम है, ज्वर बड़ा चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ के आना है। और आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो कि इसमें 2-2 मार्क्स के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो चीजें आपने ध्यान से पढ़नी है, ज्वर की प्रवृत्ति क्या है, ज्वर मीन्स कौन सा साध्य होता है, कौन सा सुख साध्य होता है, नव ज्वर में किसका निषेध है, ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। धातुगत ज्वर की चिकित्सा क्या है, धातुगत ज्वर के लक्षण क्या है, विषम ज्वर कितने हैं, विषम ज्वर में कौन से में क्या दोष होता है, किसके क्या लक्षण होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो मैं, ठीक है, तो मंडे को हम ज्वर की रिवीजन करेंगे। ओके। ओके मैम। यस मैम। तो थोड़ा सा मतलब पढ़ लो, अभी आप लोगों के पास टाइम भी है, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना रहे। और मेरे ख्याल से आप लोगों का ही बैच था जो बहुत लाइटली ले रहे थे कि शायद हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे या हमें बिना पढ़े पास कर दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो आप लोगों सेकंड ईयर में दूर हो लिया मैम। हाँ, हो गया ना, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टरों का ये हाल है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बिना पढ़े पास हो जाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती आयुर्वेद के लिए, इवन मेडिकल फील्ड के लिए, कि आप बिना पढ़े पास होना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।